नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। LCOI अवार्ड समारोह 1 जून 2025 को शाम 6 बजे से कोलकाता के ITC रॉयल बंगाल होटल में आयोजित हुआ। इसमें बहुत बड़े डिग्निटीज और बहुत बड़े व्यापारी लोग उपस्थित। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने कोलकाता में आयोजित LCOI अवार्ड्स 2025 में समाज के परिवर्तनकारी व्यक्तियों को सम्मानित किया। लायंस क्लब कोलकाता इंटरनेशनल विश्व का सबसे बड़ा सेवा क्लब संगठन है जो 200 से अधिक देशों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके 1.4 बिलियन सदस्य हैं। भारत में लगभग 8,500 क्लब हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है और इनमें करीब 2.9 लाख सदस्य हैं। Today, Lions Clubs International first Vice President and incoming President AP Singh Ji, our past International President of Lions International from India, Naresh Agarwal Ji, and past International Director and Board Appointee Sangeeta Ji with us today for this presentation. As you all know, Lions Clubs International has got more than 100 years of legacy service. We have been honoring our co-NGOs and those individuals and the corporates who have been champions of change, improving the lives of the individuals and making this world a better place to live. We want to honor those individuals across India from various societies. This is the third year of this awards function, and in a few minutes it's going to start. Now I request our Vice President AP Singh sir to present. Thank you, my dear friends, for being here. Lions Clubs International is the world's largest service club organization. We are in more than 200 countries and geographical areas. We are around 14 lakh members around the world. India is the largest membership country with about 292,000 members in close to 9,000 clubs in this country in all states and union territories, and we are engaged in providing service, need-based service to our communities in the process of nation building. But as the Lions Club members are engaged in this wonderful work so that we can help our governments and the people of this country to really emerge to be the #1 country of the world in building the infrastructure and supporting the development of the country. We also understand and recognize that there are many individuals, other corporate entities, foundations, and other organizations who are doing wonderful work for the country. We wish to recognize them, honor them, and basically say thank you to them for the great work that they have been doing. We believe that working in collaboration, working together in partnerships, that is the key for growing the impact on our communities, for improving the status of our communities, and together we can do a lot more. So each year we recognize around 15 individuals who are not members of Lions Clubs, who through their personal work, through their personal contributions, through their corporate entities, through other foundations, are doing phenomenal work in India, whether for healthcare, for education, for women's empowerment, youth empowerment, and so on and so forth. So we do this kind of recognition. We believe it's important, and today this Champions of Change recognition event, that is awards, are going to be presented to 15 such individuals from different parts of the country. चैंपियंस ऑफ चेंज का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका कारण क्या है? आज हम यहाँ पे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा तीसरा कार्यक्रम है हमारे देश में। इसके पहले भी हमने 2 इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। कहाँ किए सर? एक हमने दिल्ली में किया था, एक हमने मुंबई में किया था, तीसरा हम आज कलकत्ते में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम है, हम जो लायंस सारी दुनिया में सर, एक सवाल है इसके बीच में।
क्या ये जैसे कलकत्ता में किए तो सिर्फ कलकत्ता वासी को दे रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से लोगों को? नहीं, ऑल इंडिया से हमारे जो सिलेक्ट जो रिकॉग्नाइज जिनको कर रहे हैं वो ऑल इंडिया से अलग अलग जगह से आ रहे हैं लोग। तो ये जो हम जो सेवा के कार्य सारी दुनिया में करते हैं 210 देशों में और 14 लाख से अधिक हमारी सदस्य संख्या है, सारी दुनिया में सेवा के कार्य हैं। खास करके हमारे देश भारत में बहुत सेवा के कार्य हम करते हैं। हमारे बहुत से परमानेंट प्रोजेक्ट हैं जिसमें स्कूल हैं, ब्लड बैंक हैं, आई हॉस्पिटल हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं, चाइल्ड मदर केयर क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं। इस तरह की बड़ी संख्या में सेवा के कार्य करते हैं। और आपको पता है सेवा कार्य करने के लिए हमें पार्टनर्स चाहिए जो हमें सपोर्ट करें। तो काफ़ी कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, खुद भी पर्सनल लेवल में भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पैसे के माध्यम से भी करते हैं प्रोजेक्ट सपोर्ट करके, और अपनी टीम के साथ भी हमारा सपोर्ट करते हैं। इस तरह के जो लोग हमें सपोर्ट देते हैं और जो आगे हमें सपोर्ट दे सकते हैं और जो खुद भी सेवा के कार्य करते हैं, उनको हम चुन करके हम इस अवार्ड के लिए नामांकित करते हैं। उन्हें आज अवार्ड दिया जा रहा है। ये उन्हें हम चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से अवार्ड दे रहे हैं कि वो समाज में बदलाव लाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हमारा है, ये AP सिंह जो हमारे फर्स्ट इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और अभी जुलाई से इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया से तो पहले भी हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हुए हैं, परंतु ईस्टर्न इंडिया से पहली बार हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, और इसमें आज हमारे जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं फिरहाद हाकिम जी, वो आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट रहेंगे। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेटिंग? मैं GS ओरा, पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर, और अभी मैं लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन का ट्रस्टी। थैंक यू सर। आज के चैंपियन ऑफ चेंजेस मीट लायंस इंटरनेशनल। লায়েন্স সবসময় এমন কিছু জিনিস করে যেটা সবার থেকে আলাদা। আমার পাশে প্রথম থেকে আমার এই কাজটার সঙ্গে প্রথম থেকে লায়েন্স জড়িয়ে আমি পার্সোনালি ভীষণ গ্রেটফুল। আর সত্যি তো অনেক সময় অনেক চেঞ্জ মেকার্সদের মানুষ জানতে পারে না, চিনতে পারে না। The Lions has taken a tremendous responsibility যে মানুষ তাদের চিনুক, জানুক, আর অ্যাকনলেজমেন্ট পেলে পরে একটা ইন্সপিরেশনও তো সেটা। সো আই থিঙ্ক ইটস এ হিউজ স্টেপ ফরওয়ার্ড। আর যারা পাচ্ছেন তারা শুধু না, তাদের দেখে অন্যরাও ইন্সপায়ার্ড হয়। Lions has always done things which are larger than life. দিদি, তুমি তো ক্রিয়েটিভ ন্যাচারে চলে যাচ্ছ। সোশ্যাল ওয়ার্ক আমি এটাকে আলাদা করে দেখি না। আমার যে কোনো মানুষের ক্রিয়েটিভ হোক, যে কোনো এনি আর্ট ফর্ম, সেটা যদি আরেকজনকে হেল্প না করে, সে যে কোনো কাজই, আমি বিকজ আমি আর্টিস্ট, আমি সেটা বুঝি, যে কোনো আর্ট ফর্ম যদি আরেকজন মানুষের কোনো কাজে না লাগে, then it becomes a selfish art form. The art should spread love, compassion, beauty amongst everybody. আজকে এখানে অ্যাওয়ার্ডই হয়ে কেমন লাগছে? I feel humbled and honored. ওরা আমাকে একটুখানি বোধহয় বেশি ভালোবাসে, সেই জন্য আমাকে ভেবেছে, আমার কথা ভেবেছে। I feel very humbled. দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? এরকম করেই সব মানুষের পাশে লায়ন্স যেরকম পাশে দাঁড়ায়, ওদের কাজের কোনো ওদের কাজের পরিধিটা এটা বিশাল। সবাই যেন এইভাবে একটু একটু করে হলেও, লায়ন্সের মতো অত বড় করে না হলেও, প্রত্যেকে যদি একজন মানুষের জন্য একজন পাশে দাঁড়ায়, I think the world will be a better place. जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि आप क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं और क्या चैंपियन कर रहे हैं। चैंपियन लायंस क्लब्स विश्व भर में हैं और भारत में भी लायंस क्लब्स हर जगह हैं। हमारी लायंस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो हमारी अम्ब्रेला बॉडी है पूरे लायंस क्लब्स ऑफ इंडिया की। वो हर साल ये अवार्ड सेरेमनी करती है जहां पर 10, 12, 14 ऐसे विशिष्ट लोगों को अवार्ड्स देते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनको हेड करते हैं और पर साथ साथ सेवा का कार्य करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लायंस के लिए साथ काम करते हैं, पर जहां भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि हम उनको अवार्ड करें,
क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पार्टनरशिप के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लायंस हम कुछ अकेले कर नहीं सकते, यदि हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम और ज्यादा होगा और हमारी वो पहुंच और ज्यादा होगी। तो आज यही एक सेलिब्रेशन है, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो हमारे साथ में भी काम कर रहे हैं और अदरवाइज भी काम कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन और चैंपियंस ऑफ चेंज की अवार्ड सेरेमनी है लायंस ऑफ इंडिया की। आज कितने जन को अवार्ड दिया जा रहा है? आज 14 जन को अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ पर। उनमें कुछ विशिष्ट लोगों के आज यहाँ पे विशेष चंडयोग जी जो ग्रैंड थॉर्टन के हैं, आज MM सिंघी जी जो अहमदाबाद से आए हैं, आज यहाँ पर अजय पटेल जी जो वापस अहमदाबाद से आए हैं, हमारे DR मेहता साहब, किरण कार्णिक जी, सज्जन भजंका जी कलकत्ते से, सज्जन बंसल जी, दीपक गोयल जी, ऐसे कई लोग तो आज हम यहाँ पर अवार्ड देकर हमको लगता है हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो इस अवार्ड का असली पर्पस क्या है? असली पर्पस यही है कि हम उनको बुलाएं, उनको सम्मान दें और साथ साथ हम लायंस क्लब्स क्या करती हैं वो भी बताएं उनको, ताकि हम साथ में काम भी कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोगों को सम्मान देना हमको लगता है हमारे लिए एक सेवा का कार्य ये भी है, इसीलिए अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैम आप लोग सेवा का क्या कार्य करते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं। सेवा का कार्य लायंस जहां पे भी कोई जरूरत है वहां पे काम करते हैं। हम पूरे भारत में कोई 150 आई हॉस्पिटल्स चलाते हैं, कोई 250 स्कूल्स चलाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं और ये स्पेशली फीडिंग द हंगर के प्रोग्राम्स बहुत करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम करते हैं। यू नेम इट, लायंस आर डूइंग एवरीथिंग। और जहां पे भी सपोज कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आता है तो भी लायंस वहां पर खड़े रहकर काम करते हैं। तो ये एक संस्था ऐसी है जहां पर जुड़ते हैं जरूर, पर करते हैं सेवा काम अपने समाज के लिए। तो आप लोगों ने समाज सेवा का जो कार्य किया है अभी तक, तो आप लोगों ने नीडी वर्ग को बहुत कुछ दिया होगा, तो कोई एक ऐसी घटना बताएं जो आपको भी अच्छी लगे और नीडी वर्ग को भी अगर किसी को जरूरत हो तो वो आपसे संपर्क कर सकें। हर तरह के काम करते हैं हम, भले वो एक हार्ट का ऑपरेशन हो किसी का कराना वो भी करते हैं। बच्चों को जब होते हैं, आज की लड़कियां जब जन्म होता है तो कई बार वहां पे उनको भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में अभी तक भी वो प्रॉब्लम रहता है, तो वहां भी हम सपोर्ट करते हैं। आंखों की ऑपरेशन तो हम बड़े तादाद में कराते हैं, आई स्क्रीनिंग्स कराते हैं, डायबिटीज चेकअप कराते हैं, कैंसर डिटेक्शंस करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सिर्फ डिटेक्शन ही नहीं सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह के हेल्थ रिलेटेड काम, आज कहीं पे भी ट्यूबवेल्स चाहिए, वाटर फिल्टर्स चाहिए, वो भी हम लगाते हैं, RO प्लांट्स लगाते हैं। इस तरह के हर एक काम, भले आज जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनको भी हम वो एड्स देते हैं, आज हियरिंग एड्स देते हैं, वैसे हर तरह के कार्य जहां भी जरूरत है लायंस वहां पे रहते हैं। धन्यवाद मैम, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं संगीता जटिया, पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के। थैंक यू मैम। हिंदी में सर, आप लोग जो ये काम कर रहे हैं चैंपियंस ऑफ चेंज, तो इसका क्या है? लायंस क्लब्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1917 में हुई और भारतवर्ष में हम 1956 से हैं। सारे संसार में हमारे 14 लाख सदस्य हैं, भारतवर्ष में प्राय 3 लाख सदस्य हैं, 9,500 क्लबें हैं हमारी। जो क्लबें सेवा की जहाँ जहाँ ज़रूरत रहती है उस सेवा के अनुसार वो सेवा के कार्य करती हैं। लेकिन लायंस क्लब को छोड़ के भी बहुत लोग सेवा का बहुत कार्य कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, देश के लोगों की सेवा के बहुत कार्य कर रहे हैं। हम उनको भी धन्यवाद कहना चाहते हैं और हम उनको भी रिकग्नाइज करना चाहते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व हमने शुरू किए हैं ये नेशनल लेवल अवार्ड्स। जो लोग लायंस क्लबों के सदस्य नहीं हैं और वो बड़े रूप में जो सेवा के कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के बड़े से बड़े कई संस्थाएं चला रहे हैं, मनुष्य हमारे देश के नागरिकों के भले के लिए, हम उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं। बेसिकली वो लायंस सदस्य नहीं है तो भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है हमारी उनसे कोई पार्टनरशिप हो नहीं हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी इस कार्य में बहुत अच्छे लगे हुए हैं जिस कार्य में हम भी लगे हुए हैं। देश की तरक्की हो, देश के लोगों की सेवा कर सकें, इस देश में बहुत ज़रूरत है, तो उसलिए हम उनको भी रिकग्नाइज करते हैं। ये ज़रूरी है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकग्निशन मिलता रहे। आमतौर से माफ़ मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा, प्रेस हमेशा नेगेटिव कई बार न्यूज़ खोजता है। प्रेस में जो अच्छे कार्य इस तरह से समाज के हो रहे हैं उसको जगह ही नहीं मिलती, तो हम इसमें उनको बुला करके रिकग्नाइज करते हैं, कहते हैं भाई बहुत शानदार आपने काम किया।
एक दूसरे को अगर हम प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हम और अच्छे काम करते रहेंगे। उसी एंगल से ये चैलेंज ऑफ चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स को स्थापित किया गया है। आज कितने लोगों को दे रहे हैं और 15 क्यों दे रहे हैं सर? बिकॉज उनकी किसी ने एजुकेशन में, किसी ने क्लाइमेट चेंज में, किसी ने हेल्थ सेक्टर में, किसी क्लाइमेट चेंज की कौन है? इसमें एनवायरनमेंट के काफी लोग हैं जिन्होंने, 2 सज्जन हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट में बहुत काम किया है, ग्रीनरी स्प्रेड करने में बहुत काम किया है, एंड जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट खराब हो गए थे वहां पर लेके काम किया है, ऐसे लोग भी हैं, उनको भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो कई आज ही, वैसे यहाँ पर नहीं है, आज ही हमारे देश के जो वाटर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मीटिंग की है हमारे सदस्य के साथ में इन वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि लायंस जो कि वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं उन्होंने उसको बहुत सराहा है और कहा है कि लायंस क्लब और भी ज्यादा ऐसे काम से जुड़ें। तो हम दूसरों को भी सराहते हैं, हम खुद भी काम करते रहते हैं, क्योंकि इस देश में हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को हमने सबसे महान देश बनाना है और उसके लिए सरकार के साथ में हमारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। हम सरकार के साथ मिलकर काम करें, जो भी सरकार हो, हम अपनी सरकार के साथ मिलकर काम करें, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके साथ हम मिलकर काम करें, यही हम चाहते हैं और हम कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो सर ये फंडिंग आप लोग क्या खुद करते हैं? ये हमारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग, नहीं, प्रोजेक्ट जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी फंडिंग आप सरकार से नहीं लेके खुद करते हैं? सरकार से तो कम फंडिंग मिलती है, लेकिन सरकार की कई इनिशिएटिव्स हैं, अगर उनसे फंडिंग मिलती है तो बहुत अच्छा है। हमें बिजनेस सेक्टर से भी फंडिंग मिलती है, लेकिन हमारे लायंस सदस्य खुद बहुत लंबी फंडिंग देते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे तकरीबन 2,90,000 से ऊपर हमारे सदस्य हैं, वो सब अपने डोनेशंस देते हैं, लोकल लेवल पे देते हैं, नेशनल लेवल पे देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देते हैं। और उन डोनेशन से आपको सुनकर शायद ये अच्छा लगेगा कि हर वर्ष लायंस क्लबों के द्वारा अनेक तरह के सर्विस के जो सेवा के कार्य होते हैं उनमें तकरीबन 400 से 450 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं कहूँगा इन्वेस्ट होता है इस देश के डेवलपमेंट के लिए। कोई प्रोजेक्ट 50,000 का भी होता है तो कोई 50 लाख का भी होता है। तो जो 10,000 तकरीबन 9,500 क्लबें हैं हमारे सारे देश में, वो क्लबें इन कार्यों को करती हैं और हर क्लब अपना जहां तक हो सके फंड रेजिंग करती है, लोकल लेवल पे फंड रेजिंग करती है। लाइन सदस्य खुद से देते हैं, समाज के लोगों से भी पैसा मांगते हैं और उसको लेकर के ये सारा कार्य होता है। सर कोई ऐसा कार्य जो इंटरनेशनल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया हो और नीडी व्यक्तियों के लिए, तो वो अगर आपके कुछ ध्यान में हो तो वो बताएं, जिससे कि दर्शक ये जान सकें कि आपने ऐसा कार्य किया तो कोई नहीं कर सकता। आज भारतवर्ष में अंधत्व निवारण का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। सारे संसार में अंधत्व निवारण के लिए लायंस ने बहुत बड़ा कार्य किया है। लायंस को अक्सर नाइट्स ऑफ द ब्लाइंड कहा जाता है सारे संसार में। भारतवर्ष में ही हमारे 172 आई हॉस्पिटल चलते हैं, जिसमें के हर वर्ष 5 लाख से ज्यादा फ्री आई सर्जरीज की जाती हैं और सब्सिडाइज रेट पर और जितने भी आंखों को लेकर के चिकित्सा होती है वो सारी की सारी ट्रीटमेंट दी जाती है। ये सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे कई एक इनिशिएटिव सारे संसार में लायंस ने किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में, वहाँ तो रिवर ब्लाइंडनेस बोल के एक बीमारी है, जिस बीमारी को मिटाने के लिए सिर्फ एक पेनिसिलिन की ट्यूब का चाहिए होती थी, जिस पेनिसिलिन की ट्यूब शायद $1 या $1.5 से कम थी उसकी कॉस्ट होती थी, लेकिन वहाँ हर वर्ष लाखों इंसान अंधे हो जाते थे बिकॉज ऑफ दिस रिवर ब्लाइंडनेस। उसको पूरे का पूरा इरेडिकेट किया है लायंस ने, वो बीमारी प्राय खत्म कर दी है लायंस ने, बिकॉज वहां पे फोकस करके। वैसे ही भारतवर्ष में भी, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन का बहुत बड़ा काम किया। और ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज भारतवर्ष में हमारे 46 ब्लड बैंक हैं। आज ब्लड बैंकिंग के साथ में लायंस का नाम पूरा इस तरह से जुड़ गया है कि आपको ब्लड अगर कहीं भी चाहिए तो आप लायंस से संपर्क करें। अगर उनका ब्लड बैंक होगा तो वो आपको ब्लड वहीं से दिला देंगे, नहीं तो और वो कहीं से, हमारे पास में रेगुलर डोनर्स की लिस्ट रहती है, वो ब्लड डोनेशन करेंगे। ऐसे कई कार्य जो हैं, ये तो जस्ट एक उदाहरण है। इसमें अगर मैं गिनता रहूं तो शायद आप उतना इस इंटरव्यू में कवर भी नहीं कर पाएंगे। उस तरह के कार्य होते रहते हैं और ये सब साधारण मनुष्य जो लायंस क्लबों के सदस्य हैं, लेकिन जो इस देश के लिए सेवा के काम करना चाहते हैं, मानवता के लिए सेवा के काम करना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके कार्यों से ये संभव हो पाता है। सर इंटरव्यू का कोई वो नहीं होता, महत्वपूर्ण इंटरव्यू चाहे वो आप बोले और चाहे कोई भी बोले, तो वो हम पत्रकार जरूर लेते हैं और दर्शकों तक पहुंचाने की इसलिए चेष्टा करते हैं कि जिससे आने वाला कल हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनको लाभ मिले, आप लोगों से संपर्क करके, और
उनमें जो कमियां हैं वो अपनी दूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। आपका